Let me introduce to you all the person who is there with us. Many a time we come across people who are normally we find and we see as an examples or just a common person also. But very few people are unique and you have find those people being an example for the society. I have many good experts in the Northern industry, but I wanted to start with a person who is very much different than what you all are going to meet in the coming times. Those types of people you will be meeting here throughout the professional career also. Recently, you would have, I don't know how well you all are preparing for your current affairs. Recently, you might have seen the Padma Shri awardee list. If you go through the profile of the people who have got that award, they are very much unique and they have done something to the society wherein our thought process ends. So I wanted to bring in such kind of people. Obviously, he is not a Padma Shri awardee, but he is not less than that. And to start with the session, I found it that the best way to start because I started it yesterday with the program, and I wanted like when we cook the food, we need the right garnishing. So if the garnishing is right, the dish itself becomes very appealing and the appetite is the best. So that is why. And then we have other speakers who are going to talk the professional experiences what they have. So this is something little different than professional experience and from our industry. Right? So first thing, what is your number? Go and check the list of Padma Shri awarded this year. You will be able to understand. Similarly, one movie was made by the Akshay Kumar, Madman. So you have seen just a real life there. The real person behind that, if you would have Googled, you might have seen that picture or something like that. Now I am introducing to you all the Padman of Jharkhand. And he is the real force behind the menstruation hygiene cycle and everything. In the rural and typical rural I am talking about, just like the nearby villages here, they are not the typical rural setup. Typical rural setup where you don't have the right kind of approach roads also many times, they don't have the facility of proper drinking waters also, and there are lot many things. So I am talking about those type of backward villages where that he has reached. His name is Mr. Mangesh Jha, and he graduated hotel management from IHM Bhubaneswar in the year 2008. Luckily, I have done my graduation from the same college 10 years back in 1998. So he is 10 years junior to me, but more famous than me. He worked in Kolkata, Pune, few hotels till 2013, 5 years he remained in the industry, and then he moved to Jharkhand. And he came out of this all flashy life, and he started to do this type of social works for the people. And recently they have introduced me with a new concept. Again, they are coming in for the elderly now by the name Aapki Lathi. So doing all this thing is not a cup of tea for every type of personality. And he is an ardent follower of Swami Vivekananda. And I am also. So the two similarities are from the same college alumni, and we have both the same followers. In my office, you might have seen that portrait of Swami Vivekananda, no other political figures in my office. And sometimes I call that I am the next Swami Vivekananda myself. So I got the right person
social behavior, and that is the best thing before starting for how you are going to prepare for the campus. And that is why I was very concerned that most of my students should reach college, but due to some unavoidable circumstances during this pandemic, every student we are not lucky enough to get it. We are trying to record the session and we will share this on YouTube for them. But we will not be able to make it alive because that disturbs the session and I don't want any disturbance. I want you all to be well connected with my speaker present here. So I would like to invite Mamesi and they are now yours for whatever time you want. I am handing this mic address to you. Thank you. Thank you so much, sir. And so, as sir have already given a very brief about me. First of all, I am a very unorganized fellow. So be unorganized, then only your life will be organized sometimes. So it's an open session. किसी के मन में कोई प्रश्न हो, please go ahead and ask me. And yes, 2009 IHM Bhubaneswar. Then I went for Oberoi's grant. From there with Marriott's Pune. Then after that I came down to Radisson and all the things happened. And as I said, I am a very unorganized fellow. So, and I was a last bencher. They are the one who can create a lot of difference in the society. And when I came down over here in Ranchi, things started to change and I got a very different perception to see life. And as sir have already mentioned that, my core subject to work for the upliftment of the tribal community was related to the menstrual hygiene. But yes, today's topic, as I say, sir have given me cognitive skills. It's very important. So I'll just write 3 important things of Swamiji. इस पे हम लोग बाद में आएंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सक्सेसफुल. प्योरिटी, पेशेंस एंड परसिवरेंस. इफ यू आर नॉट प्योर, it's very difficult. If you are impatient, as I said, I am unorganized, but I am patient. I wait for the right time. So you also need to be patient and perseverance. मतलब कि constant approach होना चाहिए. So when I started, it was really difficult for me. I hope you all have done your industrial training, or so which hotels you went to? Mask utar lo. Great. Great. Someone from the girls? So hotel gives you a very different lifestyle, isn't it? मुश्किल तो है ट्रेनिंग में. 13 घंटा 14 घंटा you all have to put in our best efforts. फिर एक पॉइंट में आके लगता होगा कि यार कहाँ फंस गए हैं, कि यही करने आए थे. We felt that कि okay, cracking out JEE and going to IHM Ranchi or to some other IHM, एक ही बार में GM बन जाएंगे. It's not possible. It's not possible. I was also into the same perception. I went to Trident Bhubaneswar for my industrial training and all. But as I said, we need to be perseverant in achieving our dreams and goals. So when I came down over here, so there is a village called Rasabeda. So when I went to Rasabeda, वहाँ पे menstrual hygiene के बहुत सारे issues थे. Now if you go through couple of datas, National Family Health Survey 4, datas are very important as our all mark sheets. So when you go through those datas, तब आप सब देखेंगे. How many of you are from Jharkhand and Bihar, and you are from Calcutta?
So especially झारखंड, बिहार एंड उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे महिलाएं 83% they don't know what is a sanitary pad, and this changed my life because जब हम उस गांव में गए तो वहाँ की महिलाएं जो हैं वो सैनिटरी पैड के फॉर्मेट में यूज कर रही थी राख। राख समझते हो ना? बहुत सारे जगहों पे चारकोल डस्ट, एंड जहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है तो वो लोग लकड़ी का भी इस्तेमाल करती हैं। दुकान में जहाँ पे कारपेंट्री का काम होता है, you all must have seen those soft skin of that wood, so they also use it. That changed my life. I realized ki what I am doing exactly. So there my cognitive skills came down and I left my job entirely and I started to uplift the people. Now coming back to the cognitive skills, so we'll stick on to that. Rest information about me you'll get it from Google, so you can read me over there. तो हम लोग cognitive पे focus करेंगे क्योंकि आप लोगों का campus भी नजदीक में है, right? And I wish कि हमारे यहाँ से, as sir is alumni of my college only, I wish कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ से जो हैं वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आगे बढ़ें। सुमित भैया थोड़ा पानी भी। ये क्या है? पेन। ओके, सो कल क्या ब्रेकफास्ट किए थे? आलू पराठा। और एक हफ्ता पहले आज ही के दिन क्या ब्रेकफास्ट किए थे? आलू पराठा। नहीं याद है? Why I ask you, see, cognitive skills जो है वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। जब मैं ये पूछा कि क्या है, ये यूनिवर्सल है, इट्स अ पेन, ठीक है, इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक पेन फॉर ऑल ऑफ अस, बट किसी लेमैन से पूछोगे तो वो भी कहेगा ये पेन है। सो इसको हम लोग कहते हैं डिफाइंड इंटेलिजेंस। इट इज यूनिवर्सल फॉर द एंटायर ग्लोब, राइट? सो सेकेंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलेज में अगर हर रोज एक समान रहे और कभी कोई बदमाशी करता हुआ पकड़ा जाए तो वो कॉलेज के मेमोरीज में होता है, राइट? नाउ से दैट आई हैव अ गर्लफ्रेंड, आई ब्रोक अप विथ हर, इट विल बी देयर इन माय माइंड, इजंट इट? इट गोज टू ऑल ऑफ यू। इसको हम लोग कहते हैं episodic memory. Say that you went to some kind of family function और वो आप सबके दिमाग में एपिसोड के रूप में होता है, राइट? बट एज आई सेड कि कल क्या ब्रेकफास्ट किए, ही नोज, बट एक हफ्ता पहले क्या किया उसको याद नहीं है। इट्स पॉसिबल, देयर माइट बी सम स्मार्ट पीपल जिनका थोड़ा एक्टिव है न्यूरॉन्स, तो डेफिनेटली वो उस पर रिएक्ट कर सकते हैं, एंड दे कैन, एंड ऑफ कोर्स यू पीपल आर वेरी ऑनेस्ट। बहुत कॉलेज में तो स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि ये खाए थे मन बना के, राइट? अब तीसरा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। जब अपने कॉलेज से निकलते हो, फर्स्ट ईयर नोज कि उसको कौन से क्लासरूम में जाना है, सेकेंड ईयर ऑल्सो नोज कि उसको कौन से क्लासरूम में जाना है, सिमिलरली थर्ड ईयर ऑल्सो नोज कि उसको कौन से क्लासरूम में जाना है, या से दैट कि आपको अपने घर जाना है, यू नो द रूटवेज एंड पाथवेज एंड ऑल, राइट? दिस इज व्हाट वी से प्रोसीड्यूरल, और यू कैन से प्रोसेस बेस्ड इंटेलिजेंस। दिस इज द पार्ट ऑफ कॉग्निटिव साइंस, दिस इज द बेस। आई वोंट गो वेरी डीप, आई एम रियली सॉरी, हम थोड़ा लेट पहुंचे, बट this one process right now you all are learning process, right? And remember one thing, hotel runs on a set protocol of SOPs. You know what is SOP? ये हमारे और तुम्हारे हिसाब से नहीं चल सकता है, so never ever break the SOP of the hotel, right? And I hope
मेरे बैच में ऐसे बहुत सारे लड़के थे जो शायद गलती से होटल मैनेजमेंट कर रहे थे, राइट? एंड आई होप कि आप लोग ऐसे नहीं हैं. हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट दिस इज द बेस्ट करियर आई हैव चोजन? रेज अप योर हैंड्स. हाँ, सो द इंडस्ट्री इज इन क्रैश, पैंडेमिक, और ये फैक्ट है. जॉब्स नहीं है अभी, टू बी ऑनेस्ट. It will be very hard for all of us to compete. I won't say you. I see all as mine, right? It will be really hard for all of us to compete. वो difference क्या होगा कि जो आप लोगों को वहाँ तक लेके जाएगा, ठीक है? Okay, so you people answer. आप लोगों ने हाथ नहीं उठाया था, तो होटल मैनेजमेंट गलती से किए हो या घर का प्रेशर था? अच्छा, ठीक है. वन क्वेश्चन. इट्स अ वेरी इनफॉर्मल सेशन, डोंट ट्रीट मी एज अ स्पीकर, ठीक है? हम अभी बैठ के बात करते हैं. अब ऐसा है कि आई टेल यू सम ऑफ द ग्राफिक्स रिलेटेड टू ग्राफ्स रिलेटेड टू होटल इंडस्ट्री एंड ऑल. सो प्रोफेशनल कोर्स आपको करना था, और भी प्रोफेशनल कोर्स था, काहे नहीं किए भाई? ओके. Look, I'll tell you one thing, कि hotels is the best lucrative career if you are looking for. Do you know how much a GM of a good brand, I'm not talking about Radisson Blu Ranchi or Capitol Hill or something like that. You know how much they are getting paid? A general manager of a good brand, how much? महीना पे बात करो भाई, पढ़नम नहीं समझ में आता हमको. हाँ, हालांकि अभी बढ़ा है, 6.5-7 तक जा सकते हैं. अब एज आई सेड, लुक, गेट योर सेल्फ कनेक्टेड टू दीज 3 बिफोर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यूज, एंड यू नीड टू हैव अ वेरी रेडी रेकन आंसर्स. अदरवाइज यू आर गॉन. पीछे बहुत लंबा भीड़ है, कब तुम्हारा पत्ता कट जाएगा समझ में नहीं आएगा. समझ रहे हो ना? I'm from Bihar, so I have that MTI. MTI समझते हो? Mother tongue influence. You all have to be very smart, and you all can do it. So that's why at first I have written purity. What you are doing, you need to be pure to your subject. And you need to have utmost patience to reach somewhere. और ये फैक्ट है कि 0 के बाद ही 1 आता है, 1 के बाद. Getting my point? And perseverant means you need to have a very ideal approach. It can't be superficial. Getting my point? When I started to help people over here, it was very challenging for me. I was thinking कि यार हम कर क्या रहे हैं? अगर हम impatient हो जाते तो बीच में छोड़ देते. Then again it would have knocked my head कि कहाँ फंस गए भाई, फिर से ये छोड़ो वो करो. So 2 मझधार में नहीं रहना है. Either if I next time come, मतलब इंटरव्यूज के बाद, या तो फिर इस क्लासरूम से 90% लोग एम्प्टी में रहें, नहीं तो भैया कहीं मत रहो. ये चैलेंज तुम लोगों को रखना पड़ेगा. एंड आई विल टेल यू वेरी फ्यू थिंग्स. होटल इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट हैविंग स्मार्ट पीपल. वर्कआउट ऑन योर बॉडी, द वे यू स्पीक, द वे यू टॉक, द वे यू वॉक. These 3 things are very important. And of course, all of your communication skills that needs to be brushed up. क्या करते हो तुम लोग सब लोग कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने के लिए? What you all do? और बुक्स. और बुक्स कौन सा बुक्स? फिल्म स्टार का. ओके. और एडिटोरियल्स. ग्रेट, स्मार्ट. एडिटोरियल्स पढ़ो. और एक मैगजीन आता है रीडर डाइजेस्ट. कोई पढ़ते हो ये रीडर डाइजेस्ट? रीडर डाइजेस्ट एक मैगजीन आता है
जो मासिक होता है, हर एक महीने आता है, you should read that. Of course, hotels and all very good, and be very much prepared. Now you see what makes the difference. कि हम सब बहुत बार ये सोचते हैं ना कि यार वो IHM मुंबई में है, हम यहाँ पे हैं। तुम लोग भी सोचते हो ना, इन्फ्योरिटी आती होगी, यार ही इज इन IHM मुंबई, हम यहाँ पे क्यों हैं? आता होगा, हॉस्टल में तुम लोग बात करते होगे वीकेंड्स पे, है ना? I'll tell you, that's the benefit of being in a college, especially in a place like Ranchi, where you have a lot of opportunities to explore. They don't have. Might be in a metro city, but इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बुधियार होगा। बुधियार समझते हो? ऐसा नहीं कि काबिल है तो IHM मुंबई में है। I have seen a lot of my friends who are there in IHM Mumbai doing nothing right now. Few important things, Reader Digest पढ़ो, अपने grooming को आप लोग बहुत मजबूत कीजिए। I can see few of them well groomed, spark is there, but few of, and you all can do. And always remember one thing, we all work with a lot of collective intelligence. ये तीनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है या और डीप जाने की आवश्यकता है? क्लियर है ना ये? और कलेक्टिव इंटेलिजेंस भी लिख लीजिए, CI. Without collective intelligence, we stand nowhere. So if you are having campus interviews after a month, after a 2 month, so start having a lot of group discussion among all of you. हॉस्टल में कीजिए, यहाँ कीजिए। ऐसा ना हो कि कोई टीचर को आकर के आप लोगों को पोक करना पड़े कि यार जाकर के कलेक्टिव इंटेलिजेंस करो। एंड आई टेल यू वन मोर थिंग, दिस इज अ कंट्री विथ 63% पॉपुलेशन। ये सब चीज इसलिए हम बता रहे हैं कि तुम लोग के मन में डर हो, नहीं तो पढ़ोगे नहीं। माँ बाप सोचा है कि करवा रहे तो GMA बन के निकलेगा। हाँ, तुम लोग यहाँ क्या क्या कर रहे हो तो हम समझ रहे हैं, क्योंकि हम इस पेज से आए हैं। So CI, collective intelligence, पहला चीज, read couple of good magazines. प्रिंसिपल सर को रिक्वेस्ट करो कि कुछ मैगजीन्स आपके हॉस्टल में रहे। रीडर डाइजेस्ट है, रीडिंग एडिटोरियल्स विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, एंड हैव अ स्पेसिफिक डेटा। हम जो ये कह रहे हैं कि डिफरेंस IHM मुंबई में या हम लोगों में या कहीं पे भी, बहुत लोग कहते थे कि बड़ा डिफरेंस। आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल, व्हेन आई स्टार्टेड आई फेल्ट कि आई लैंड नोवेयर, बट इन 2017 or 2018, I can't recollect. See, that's my intelligence, I can't recollect. I got the award from Akshay Kumar, and across the nation only 9 of them were awarded, and I was one of them. You know why? Just because of 3 things. I was pure in my focus, in my goal. I was patient. As I said, I am unorganized till today, but I was patient and perseverance. I was focused. हर रोज हम जाते थे उन गांवों में, चाहे जैसे भी जाना है। If I have a bike, I used to take my bike. If I have to ride my bicycle, I have to do that. बहुत बार बसेस में भी गए, लिफ्ट मांग के भी गए, but I was perseverant in my approach. I have to do this. यही चीज आप लोगों को करना पड़ेगा। You are at an age where all of you have to get a job. Coming back to the datas बहुत पढ़ो। If I ask, this pandemic में कितना लॉस हुआ पूरे टूरिज्म सेक्टर को, बता सकते हो कोई? बट कुछ भी बोल दोगे तो मान जाएंगे यार, हम होमवर्क करके आए हैं। Yes, it's not countable. Have these datas on your fingertips. 600 करोड़ ऐसे मत बोल देना भाई इंटरव्यू में। पढ़ के जाना मतलब जितना डिस्कस करोगे, यही डिस्कस तुम लोगों को करना है जो हम तुम्हें बता रहे हैं। हैव समवन, आप ही लोगों में से जो रात में कभी हॉस्टल में घूमते फिरते इन सब चीज़ों पे, ठीक है मौज मस्ती करना है, रांची जाना है, बॉम्बे से सिनेमा भी देखना है, न्यूक्लियस भी जाना है, सब ठीक है। क्यों हम बता रहे हैं समझो, 63% का जो अभी जो पॉपुलेशन है ना, वो लगभग यंग है। और हमारे अखंड भारत में एक बहुत बड़े अवतार आए हैं जिनका नाम है मोदी जी। वो बहुत गला फाड़ फाड़ के कहते हैं
दिस इज अ फैक्ट कि हम लोग यंग नेशन है, नो डाउट अबाउट इट, बट थिंक व्हाट विल हैपन आफ्टर 30 years. Try to understand that old man, Modi ji is very old, but he have young thoughts. He is putting his heart and soul. वो गला फाड़ फाड़ के हर जगह कहते हैं, बट जरा सोचो 30 साल के बाद में कहाँ पे खड़े हैं. एंड दैट्स द रीजन ऑल द स्टार्टअप्स एंड स्कीम्स आर गोइंग अराउंड. और ये बहुत अच्छी पॉलिसी है जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है. बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हो रही हैं जहां पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्टेबल हो. बाय 2050 इस देश में 60% लोग हम सब ओल्ड एज्ड पॉपुलेशन में होंगे. कैन यू इमेजिन? सो इफ यू पीपल डोंट हैव अ गुड करियर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ, it would be very difficult for all of you to sustain. रेस बहुत टाइट है. अगर किसी के मन में कंफ्यूजन है कि या क्वेश्चन का, जैसे कि व्हेन यू डोंट टेक मी पर्सनली, कि नहीं पता कि हम क्यों आए हैं, क्या करना है हमें आगे, राइट? बी फोकस्ड. हम लोग कॉलेज के बाहर में ना टांग देते थे. क्या टांगते थे पता है? पोस्टर. जब भी कैंपस इंटरव्यू होता था, इफ यू ऑल आर रेडी टू पे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 20,000 वाज टू मच फॉर अ स्टार्ट ऑफ. वी यूज्ड टू क्लियरली राइट, तभी आइए नहीं तो मत आइए इंटरव्यूज लेने के लिए. दैट मच कॉन्फिडेंट वी ऑल वेयर कि वी कैन डू दिस. दैट बिकॉज व्हाट आर यू डूइंग. कोई नहीं पूछेगा कि आप IHM मुंबई से हैं कि आप IHM रांची से हैं कल के डेट में जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा. आपका काम, आपका प्रोडक्ट नॉलेज जो है वो काम देगा. प्रोडक्ट नॉलेज समझते हो ना, कि कैसे अपने चीजों पे फोकस करना है. राइट नाउ यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट नॉलेज ऑफ द एंटायर होटल मैनेजमेंट कोर्स, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट करियर आई विल से. यू नो, व्हेन द एंटायर nation, entire globe is being divided into, you know, small forbidden lines of secularism and communalism, hotel is the only industry where we don't see the surname of a guest. विविधता में एकता, सब कुछ है इस इंडस्ट्री में. We never ask a guest कि what is your commune, from which religion you people come. कभी करते हैं? नहीं करते. We are the one who can set up a very good example, right? Anyone have any questions? अभी तक किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो पूछो. Any question you people have? Any question? पूछो. Let it be a open session. अरे भाई, हम प्रोफेसर थोड़ी हैं कि हम लेक्चर देने आए हैं. I just empty. हमको ऊंचा सुनाई देता है. एनीवेज, जस्ट किडिंग. सबसे पहले कल सुबह से तुम जो है उठ करके दौड़ लगाओ कैंपस का, ठीक है? दिस इज अ फैक्ट. सेकेंड थिंग इज योर प्रोडक्ट नॉलेज. क्या है? स्ट्रीम कौन सा है? फूड प्रोडक्शन. वेरी नाइस, वास्ट. प्रोडक्ट नॉलेज, हैव द प्रोडक्ट नॉलेज. सब कुछ एकदम घोल करके जो है, एंड बी प्रैक्टिकल. और be honest while you answer yourself in front of the interviewers. Be very honest. नहीं आता है कह दो भैया नहीं आता है, और अगर आता है तो फिर उसका सटीक जवाब दो. And always remember, interviewers are very smart than you, than all of us. They are having an experience of almost 20, 25, 30 years. Be very precise whatever you speak. हालांकि फूड प्रोडक्शन में हमारा उतना नॉलेज नहीं है. I come from a background of revenue and front office. I was one of the youngest revenue managers of Oberoi. Though my career was very short, but I was the best. That was my product knowledge. तो फ्रंट ऑफिस किसका किसका है भाई यहाँ पे? फ्रंट ऑफिस और कोई नहीं है फ्रंट ऑफिस वाला. फूड एंड बेवरेज सर्विस, सो मेनी. वाई फूड एंड बेवरेज? राइट.
बट हालांकि हम ये भी कहेंगे कि फूड एंड बेवरेज का कॉन्सेप्ट अब पूरे देश में चेंज होने वाला है, बिकॉज नाउ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड व्हाट इज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड कॉग्निटिव साइंस इज ऑल्सो बीइंग बहुत सारे होटल्स में तो रोबोटिक्स भी धीरे धीरे आ रहे हैं. हालांकि हम लोग इसमें काफ़ी पीछे हैं, बट लॉट ऑफ रिसर्च आर गोइंग ऑन. तो एक डिस्पेंसर का क्या करोगे भाई? इट्स अ कॉन्सेप्ट, बट यहाँ पे प्रचलित नहीं है. बी वेरी प्रिसाइज, वेरी वेरी प्रिसाइज. ये मत बताओ कि फूड बेवरेज ये वो, टाइम नहीं है उतना. इंटरव्यू नहीं समझेगा तुम्हें, राइट? और क्या प्रश्न है किसके मन में? तो कम अप पूछो. व्हाट इज योर इंटरेस्ट? तो भैया दोनों नाव में तो पाँव नहीं रख सकते. 2 गर्लफ्रेंड तो नहीं रख सकते हो ना, कोई एक ही रखोगे. संभव है 2 गर्लफ्रेंड रखना, वो भी अभी के महंगाई के जमाने में तो बिल्कुल संभव नहीं है. क्लियर रहो क्या करना है. सी आई डोंट नो योर स्किल्स, हमने तो प्रैक्टिकल्स देखा नहीं है. सो यू ऑल नो एंड यू ऑल कैन जज योर फ्रेंड कि हाँ ये कर सकता है. नहीं तो फिर फूड एंड बेवरेज इज ऑल्सो अ वेरी गुड डिपार्टमेंट, एंड दिस इज ट्रू. फूड एंड बेवरेज में वही एक्सेल कर सकता है जिसको फूड प्रोडक्शन का भी नॉलेज हो. दिस इज अ फैक्ट. I have forgotten so many things, but there are, अब say that कि रेड वाइन किस accompaniment के साथ जा सकता है, व्हाइट वाइन किसके साथ जा सकता है. I mean ये तो बेसिक्स है. Once you enter to the hotels, it vast. So that you have to decide whether ये वाली गर्लफ्रेंड ना whether वो वाली गर्लफ्रेंड, and you have to stick to that. फ्लर्ट नहीं करना है भाई सब्जेक्ट के साथ, समझ रहे हो ना. कोई एक गर्लफ्रेंड के साथ रहना है, तो सब्जेक्ट इज ऑल्सो लाइक दैट, राइट? सो बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि हाँ हम कर सकते हैं. ऑफ कोर्स फूड प्रोडक्शन इज वेरी चैलेंजिंग, नो डाउट अबाउट इट, एंड अनलेस एंड अंटिल यू डोंट हैव utmost पैशन यू कैन ड्राइव इट. पॉसिबल ही नहीं. ऐसे हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना क्रेज है. और कोई क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? या 2 गर्लफ्रेंड ही रखना है? और एनी क्वेश्चंस? हाँ भाई पूछो. कौन सा डिपार्टमेंट? पेस्ट्री फूड प्रोडक्शन का हो. बी वेरी क्लियर. पेस्ट्री कम्स अंडर फूड प्रोडक्शन, राइट? हायरकी पढ़े हैं ना? कौन सा किताब था वो हरा कलर का फर्स्ट ईयर में? हाँ, थ्योरी ऑफ कुकड़ी. नहीं हाँ, पता नहीं अभी ब्लैक हो गया होगा भाई, हमारे जमाने में हरा था. नेवर से बेकरी. अगर हम इंटरव्यूअर हैं हम पहले ही तुमको छांट देंगे, तुमको प्रोडक्ट का नॉलेज ही नहीं है. फूड प्रोडक्शन का पार्ट है ना भाई. और एनी मोर क्वेश्चंस? आई वोंट टेक मच ऑफ टाइम. आई नो यू पीपल वर वेटिंग. ओटी में काहे जाओगे? कौन बोला है ओटी बढ़िया होता है? ओटी इज बेसिकली द बेस लेवल इन ओबरॉयज. दैट व्हाट वी से होटल ऑपरेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम. उसके ऊपर होता है ओसर, दैट इज फॉर सुपरवाइजरी लेवल, और उसके ऊपर होता है ओसीएलडी, दैट इज फॉर योर मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम. ओसीएलडी ओबरॉय सेंटर फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट. तो ओटी में काहे जाओगे भाई? शूट फॉर द स्टार्स, देन यू विल सी वेयर टू लैंड, राइट? कल 5 किलोमीटर दौड़ोगे तुम, तब परसों से पता चलेगा कि कितना हम दौड़ सकते हैं, है ना? प्लीज. राइट, वेरी गुड क्वेश्चन. प्रिसाइज इन द सेंस देयर आर 2 वेज. एक होता है इफ यू आर वेरी गुड इन योर इंग्लिश, देन यू गो फॉर योर लॉन्ग टॉक्स, जहां पे तुम उसको उलझा सकते हो. सी लैंग्वेज इज लाइक ऑर्नामेंट. जब आप बात करते हैं, चाहे आप हिंदी में बात करें और यू स्पीक इन इंग्लिश, वो एक ऑर्नामेंट के तरह होता है.
एंड इट्स लाइक बीड्स, यू नो, ये बीड्स है. आप जितना अच्छा बोलोगे, जितने नए नए वर्ड्स यूज करोगे ना, तो वो एक ऐसा चेन बन जाता है. इट्स जस्ट लाइक सोसाइटी. जितना हम सब अपने समाज में अच्छे से इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड रहें, तो दैट सोसाइटी लुक्स सो गुड. लैंग्वेज इज लाइक दैट. अगर तुम कॉन्फिडेंट हो कि माई इंग्लिश इज वेरी स्ट्रांग, ऑफ कोर्स योर इंग्लिश इज वेरी स्ट्रांग, then only go for, you know, extended talks or have a soft argument. अगर नहीं है तो be very precise. उतना घोल गोल नहीं घुमाना है. जब इंटरव्यूअर आता है ना, तो वो माइंडसेट करके आता है कि भैया हमको इस कॉलेज से इतने लोगों को लेना है. And if you all people will be best of the best, then I can assure you that he or she will select you. And there is no second thought about it. हो सकता है कि तुम सब लोग मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम पा जाओ. जरूरी नहीं है कि ओब्रॉयज के लिए, कुछ और भी फिटाइल्स के लिए. दो वे है, ईदर बी स्पेसिफिक और एल्स इफ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट नॉलेज, देन यू गो अहेड टू द हिस्ट्री. हमको कुछ थोड़ा थोड़ा याद नहीं आ रहा है. शेरी पे somebody have asked me a question and I connected it to the history. कैसे वो शुरुआत हुआ, फियास्को में उसको कैसे रखा गया, फियास्को को कैसे बांधा जाता था. I've forgotten so many things. So that's one way where you can tell that emotional story behind that product, but that story have to be original, right? And it will happen. I have strong belief in this. Have this generation seen Modi ji selling tea? But people have voted him. You know why? Because he's a very good speaker. Of course, he has struggled a lot to reach over there. यहीं पे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं और इमोशनली लोग कनेक्ट होते हैं. बट योर प्रोडक्ट नॉलेज हैव टू बी वेरी स्ट्रांग. अगर प्रोडक्ट नॉलेज स्ट्रांग नहीं है, तो अगर तुमको नहीं पता है कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड का क्या पसंद है ना पसंद है, तुम्हारा गर्लफ्रेंड तुमको पूछेगी, राइट? आई एम जस्ट ट्राइंग टू get all of you connected, right? ये small theoretical चीजें जहां पे, और लग जाओ. अब समय नहीं है. ट्रेनिंग करके सब लोग आ गए हो ना. I think more a year's time, if I'm not wrong. लग जाओ. अभी से अगर लगोगे फूड प्रोडक्शन जैसे, have a thorough knowledge of each and every cuisine, and I'll tell you, the food habit have entirely changed across the globe post pandemic. Have the knowledge of, उसको क्या कहते हैं भाई, वैदिक कुजीन. भाई ऐसे काहे देख रहे हो, नाम नहीं सुने हो वैदिक कुजीन का? सात्विक इज डिफरेंट. Have you all heard about Ista group of hotels? Ista, देखो, हाँ? कहां तुम हयात में चल गए भाई? हयात नहीं है, इट्स हाइट. ट्राई टू लर्न द प्रोनाउंसिएशन. हाँ, कहां तुम हयात इस्ता को मिला दिए? हाँ. ये सब बुड़बक कौन तुमको बोला है सब? आई डोंट नो द स्टोरी बिहाइंड इट. कब गए थे ट्रेनिंग में? कोविड में ही गए थे. और हाइट वाला इतना बेवकूफ है कि कोविड के समय में लॉस में इस्ता को भी लेगा अपने अंदर. है, हम तो डूबे सनम, तुम भी डूब चलो. है? बहुत कोई बहुत कुछ बोलता है. ट्रेनिंग में ये भी बोला है कि उस फ्लोर में भूत रहता है. बोला है ना, यूनिवर्सल है. आई गॉट योर पॉइंट. हम मजाक कर रहे हैं. इट माइट बी पॉसिबल, लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं है कि हायट ने टेक ओवर किया है. हायट तो खुद अपना नया होटल्स को ओपन नहीं कर पा रहा है. पता है कितना लॉस में है. मुंबई में भी निकाला है और गुड़गांव वाला प्रॉपर्टी अभी रिक्रूटमेंट शुरू हुआ है. अभी शुरू हुआ है. द एंटायर प्रोजेक्ट गॉट हंग्ड अप फॉर 2.5 years. लॉस ऑफ करोड़. Why I said इस्ता पे आओ. तुम कहाँ यार हमको लेके चले गए? हयात ले लिया. हयात ले लिया तो उससे हमको तुमको क्या है? हमारा तुम्हारा रोजी रोटी चलना चाहिए ना.
Why I said Ista, that you all of you need to understand. Ista is the first hotel of our country who introduced that holistic concept of travel and tourism. Ista in the Himalayas, सर्च करो, पढ़ो, आप सब स्मार्टफोन यूज करते होंगे या लैब में जाते होंगे, पढ़ो, देखो, फिर क्लियर होगा. जहां पे वैदिक कुजीन्स पे काम हो रहा है और बाकायदा दे डू अ रिसर्च एंड ऑल कि क्या खाना है, कैसे रहना है. और अब यही कॉन्सेप्ट पूरे ग्लोब में हो गया है, बिकॉज ऑल ऑफ अस हैव बिकम हेल्थ कॉन्शियस. तुम्हारा क्या नाम है? विशाल हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, हालांकि कल से वो दौड़ने जाएगा. राइट विशाल? हाँ, ट्राई कर रहा है. राइट, द एंटायर ग्लोब हैव शिफ्टेड. टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पूरा शिफ्ट हो चुका है. इतना ज्यादा हेल्थ, सेफ्टी, हाइजीन के प्रोटोकॉल्स आ गए हैं, पूरा शिफ्ट हो गया, पूरा इंडस्ट्री ही शिफ्ट हो गया है. इवन इन फूड ऑल्सो. यू ऑल नो अबाउट अजीनामोटो? क्या है भाई? मास्क के अंदर से तुम बड़ा जोर से चिल्ला, मास्क उतार दो भाई, उतार दो, उतार दो. व्हाट्स योर नेम? क्या फ्लेवर के लिए होता है भाई? फूड एंड बेवरेज, फूड प्रोडक्शन. तुम बोल रहे हो दोनों में चलोगे, बताओ भाई क्या फ्लेवर होता है उसमें? क्या होता है? अरे भाई वो डेमी ग्लेज नहीं है कि उसको बढ़ाने के लिए यूज होगा. बेसिकली द कॉन्सेप्ट बिहाइंड अजीनामोटो इज दैट रांची में हर एक जगह यूज होता है. यू आर वेरी मच राइट ऑल ऑफ यू. इट्स बीन widely used in Chinese cuisine, but if you go around across, apart from few branded hotels, सारे hotels use करते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी गलाता है. Right? And it got a very strong flavor of onion also. अब ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, this should be on your fingertips, and that's the difference जो हमें और उनमें अंतर करेगा. किनमें? कोई भी IHM हो, doesn't matter, इवन पूसा भी क्यों ना हो. तो क्या क्या पढ़ना है? पहले क्या है? हमारे साथ बोलो. फर्स्ट इज प्यूरिटी, बी प्योर ऑन योर थॉट्स. दूसरा पेशेंस. तीसरा परसिवेरेंस. ये तीन चीज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल ऑफ अस, इंक्लूडिंग एवरीवन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट ऑल्सो. सबको. राइट? क्या है पहला? हाँ. दूसरा, तीसरा, ये एकदम यहां पे बिठा लो सॉफ्टवेयर में. गॉट इट? उसके बाद क्या है? क्या था पहला? डिफाइंड. इफ दिस इज डिफाइंड, इफ देयर इज अ सेट SOPs, me and you, we can't change it. So we have to inculcate that in our behavior. Then only we can move ahead. ये चप्पल उल्टा कोई पहन सकता है? संभव है? नहीं पहन सकता. ऐसे ही पहनना पड़ेगा. राइट? दूसरा क्या था? एपिसोडिक. एपिसोडिक से क्या सीख मिलता है होटल्स में? कोई एक उदाहरण बताओ. So you want to say that you want to do a mistake to be a episodic memory for the entire hotel. Then? Correct. Correct. It's not only about observe, but as I said, the entire industry, entire society works with collective intelligence. Right? जहां पे गलती होगा, of course, observe करके वो गलती हमें नहीं दोहराना है. Got it? That's what we say episodic memory. It's a part of cognitive behavior. समझे? उससे जो हमको सीखना है, पॉजिटिविटी लेना है, मेरिट्स लेना है. एंड ऑफ कोर्स अगर वो आपके रडार में है, इफ यू ऑल आर ज्वाइनिंग एज मैनेजर्स एंड इफ यू फील दैट यू कैन रेक्टिफाई इट, गो अहेड एंड रेक्टिफाई इट राइट अवे, so that it won't be an episodic memory for the guest and he won't check into your hotel or he won't have your food. Got it? Yes, sir. Clear है? Yes, sir. और ये process very important, thorough, procedural. अगर कोई एक पाथवे बना हुआ है तो उसको फॉलो करना है. ये एकदम ठान लो. रेबल मत बन जाना कि भाई इतना देर नहीं हो पा रहा है या ये ऐसे नहीं हो सकता. Always remember, when we all work out for the SOPs of a hotel, it's not a subject of any, ये पढ़ाया नहीं जाता है कोई भी कॉलेजेस में.
देयर इज अ स्ट्रॉन्ग R&D बिहाइंड दैट। R&D समझते हो? हाँ, R&D होता है तब वो बनता है। ओबरॉयज में एक था, थोड़ा बहुत मुझे याद है, बहुत सारी चीजें मैं भूल चुका हूं, कि अगर 20 मिनट में उसको डिलीवर करना है तो उसको डिलीवर करना है। देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट, कि अगर वो लेट होता है तो क्या होता है। गॉट इट? क्लियर है? यहां तक सब क्लियर है? इंपॉर्टेंटली रीडर डाइजेस्ट जरूर पढ़ो। अपने अंग्रेजी को अगर ऑर्नामेंटल बनाना है तो यू ऑल शुड हैव योर ओन डिक्शनरी ऑफ न्यू वर्ड्स ओवर हियर। अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर। अगर आप लोग इन तीनों में अगर स्ट्रांग हो तो आपका मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। और वो कैसे हो सकता है स्ट्रांग अगर नहीं हो तो? क्लियर? एनी क्वेश्चंस ऑल ऑफ यू? कुछ भी? हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, विल फिनिश ऑफ दिस सेशन। आई होप बोर नहीं हुए हो, बट कम अप विद क्वेश्चंस, कम अप विद क्वेश्चंस। हाँ बोलो। परसिवेरेंस मतलब हुआ सततता, सस्टेनेबल, सतत विकास जिसको कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये भैया कैमरा चला रहे हैं, ये कैमरा चालू है हो, अगर ये भैया कैमरा चला रहे हैं, एक दिन में पारंगत हो गए हैं? नहीं ना। वही है परसिवेरेंस, वही है परसिवेरेंट अप्रोच। फर्स्ट ईयर से के बार आ जाओगे थर्ड ईयर में भाई? संभव है? नहीं। क्लियर है? दूसरा चीज समझ लो, और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, इसमें भाई प्रोडक्ट नॉलेज हमको नहीं है, अब ठीक है, यही छोटा सा जगह हम लोग यूज करते हैं, कोई बात नहीं। ये एक सीड है, क्या है? इसको अपने पर्सनल लाइफ में भी सोचो। से दैट इज अ बैनियन ट्री। इसको ग्रो करना है और बहुत बड़ा छतनार पेड़ बनना है। कितना टाइम लगता है? 50 से 100 साल। हम 100 पकड़ रहे हैं आज के समय में, समझ रहे हो? पहले 1 में जाओगे, फिर 2 में जाओगे ना, तो गेटिंग अ गुड जॉब, क्रैकिंग द एम्प्टीज इज ऑल लाइक दैट। दिस इज द पार्ट ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर। अगर इन चीजों को समझ लिए तो फिर जीत गए। यू ऑल हैव ग्रोन अप। हैव यू ग्रोन अप इन 1 डे? It have taken a course of time. Got it? It have taken a hell lot of course of time. जहां पे मजबूत बने हो, खाए हो, वैक्सीनेशन हुआ है, इम्यूनाइजेशन हुआ है, दौड़े हो, साइकिलिंग किए हो। विशाल ने तो कुछ नहीं किया है, लेकिन कल से वो दौड़ेगा, दौड़ेगा ना जी? हाँ। तब जाकर के ना हम लोग मजबूत बने हैं, या हम लोगों सिमिलरली। सो एंटायर करियर, नीचे पीने का, सो एंटायर करियर इज लाइक दैट। टू शेप इट आउट, ये तो होना ही पड़े, तीनों ही होना पड़ेगा। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट कि एक दिन किए नहीं किए, कंसिस्टेंसी भी कह सकते हो, कह सकते हो क्या? कंसिस्टेंसी ही मतलब है इसका, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ये लैक नहीं होना है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां बेल बॉय से रिक्रूट हुआ है और वो जीएम बना है। हाँ जी, बेल बॉय से रिक्रूट हुआ है और वो जीएम बना है। अब बताओगे कैसे बना है, कैसे संभव है? हाँ, कंसिस्टेंसी तो है ही है। प्रोडक्ट नॉलेज ये नहीं कि ज्वाइन कर लिए, जॉब मिल गया और खुश है भाई, सैटरडे संडे जो है अपना पब भी चल रहा है, मजा आ रहा है काम, तो भैया फंसे रह जाओगे। मन नहीं बढ़ाना है कि होटल में पहुंचे एकदम एंड गॉट अ जॉब इन अ 5-स्टार होटल डाउनटाउन इन मेट्रो सिटी एंड यू ऑल वेर लॉस्ट। यही होता है मैक्सिमम बच्चों के साथ, दे ऑल आर लॉस्ट। एंड इफ यू ऑल आर लॉस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, it's very difficult to revive that. And this is a fact that time and tide waits for no one. Everything is fine. गर्लफ्रेंड भी है, सब ठीक है, काम भी चल रहा है, लेकिन you have to be perseverant in your approach.
नहीं तो क्या होगा, समय भी जाएगा, गर्लफ्रेंड भी छोड़ के चल जाएगा तुम लोग का। गेटिंग माई पॉइंट? परसिवरेंट होना पड़ेगा, ये नहीं कि एक दिन किए हैं। नाउ कमिंग बैक टू द बेल बॉय पार्ट, नाउ से दैट ऐसा भगवान ना करे कि ऐसा हो, एंड यू ऑल शुड गेट सिलेक्टेड एज मैनेजमेंट ट्रेनीज। अगर मान लो नहीं हुआ तो दिल नहीं छोटा करना है, ज्वाइन इट, गो थ्रू द प्रोग्राम्स। ज्वाइन करने के बाद में भी यू ऑल हैव एम्पल मच ऑफ टाइम दैट यू कैन अपीयर विद इन द होटल ऑन द नेक्स्ट ईयर, ईदर OCLD और ताज, TMTP, whatever it is। तो प्रोडक्ट नॉलेज होगा तभी ना। और हम बार बार कह रहे हैं कंपटीशन टफ है दोस्त इस बार, हर एक जगह। देयर आर हंड्रेड्स, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, whether they are engineers, whether they are hoteliers, doesn't matter. लेकिन competition will be very tough because hotels will be very tough in choosing people. So you all have to be very tough in maintaining these three aspects: purity, patience and perseverance. नहीं तो फिर you all are gone. मेहनत अभी से शुरू कर दो, सब कुछ करो। आई एम नॉट सेइंग कि खेलो नहीं, कूदो नहीं, बाहर मत जाओ, एवरीथिंग यू डू। एंड सबसे बेस्ट पार्ट हम लोगों के होटल्स का, आई मीन पूरे होटल मैनेजमेंट के पढ़ाई का ये है कि वी डोंट हैव मच ऑफ प्रेशर टू स्टडी। वी नीड टू ग्लोबलाइज आवर थॉट्स, वी नीड टू हैव अ वेरी ओपन माइंड एंड ओपन सोल टू अंडरस्टैंड। हर रोज क्या हो रहा है आप सबके फिंगर टिप में होना चाहिए, राइट? इट्स ऑल अबाउट ग्रूमिंग योरसेल्फ, एंड ट्रस्ट मी, होटल मैनेजमेंट ग्रूम अ पर्सन लाइक एनीथिंग। It's a overall grooming of every individual soul, and we all can be very good on to that. बस ये तीन चीज होना चाहिए, समझ गए? Any questions पूछो। अब जैसा हमने कहा कि आज से शुरू कर दो। Be cautious about your health, the way you walk, the way you talk, the way you present yourself, the way you are putting your tie, the way you are, polishing your shoes. These things are very, very, very important. इंटरव्यू में जाना तो ये हाफ सॉक्स मत पहनना, गॉट इट? फुल सॉक्स पहनो, ब्लैक और ब्राउन, दैट डिपेंड्स व्हाट यू आर वेयरिंग। ग्रूम योरसेल्फ। और अगर लगता है कि हमसे गलती हो गया है होटल मैनेजमेंट करके, इफ एनी वन ऑफ यू, तो उसको सुधारने का एक ही है कि बी द बेस्ट वंस यू पास आउट। और एक HM का करियर ऐसा है ना कि इफ यू आर फोकसिंग टू लैंड अप इन CDS और सम काइंड ऑफ अदर एग्जाम्स आल्सो, यू ऑल कैन प्रिपेयर इट। क्योंकि हमें यहाँ पे अकाउंट्स भी पढ़ाया जाता है, हमें यहाँ पे जो है कंप्यूटर साइंस भी पढ़ाया जाता है, और क्या क्या है भाई बोलो? अरे भाई एक एक करके बोलो। हाँ, होटल इंजीनियरिंग भी पढ़ाया जाता है, फूड सेफ्टी भी पढ़ाया जाता है, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंट्स, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट, पूरा पैकेज है। और ये 3 साल हम लोग पढ़ते हैं, 3 साल का ही है ना, IHM all 3 years degree course. So you won't get a subject and get a career like this anywhere, trust me. Huh? Oh, everything. I was very poor at accounts though, financial management. I was very poor. है ना? अगर किसी के मन में हो रहा है ना कि नहीं गलती कर लिए हैं, डोंट बी इन अ डोल्ड्रम। अच्छे से अपना 3 साल का एग्जाम्स दो विदाउट हैविंग एनी KTs एंड ऑल। यू प्रिपेयर फॉर समथिंग एल्स। अगर सोच रहे हो कि नहीं हमको CDS करना है, आर्मी में जाना है, और कुछ करना है, बैंकर बनना है, तैयारी फिर अभी से ही शुरू कर दो। क्लियर? एनी मोर क्वेश्चंस? कम अप। How to increase memory power? See, overall there are so many things where you can, there are so many exercises also. लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि YouTube पे जाकर के सीखो, बेसिक चीजें हैं। If you all can do it, हम अपने कॉलेज में नहीं कर पाए थे। If you can wake up early, कल जो पढ़े हो या कल जो फेसेस तुमने देखा होगा, फेसबुक पे सर्च करते हो ना सबको, तो वो फेसेस जो है ना नेक्स्ट डे रिवाइज करो। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल।
कल अगर कुछ पढ़े हो रिवाइज करो, जब तक जोड़ नहीं डालोगे तब तक नहीं खुलेगा ये। इट्स लाइक एक्सरसाइजिंग, डंबल्स उठाते हैं ना सब लोग, एक्सरसाइज करते हैं ना, तो जितना करते हैं उतना पंप अप होता है, तो वैसा ये है, इसको भी तो पंप करने का चाहिए। बेसिक चीजें हैं, फिटनेस रखो, नहीं दौड़ना है मत दौड़ो, एटलीस्ट वॉक, यू पीपल हैव अ ब्यूटीफुल कैंपस, वॉक करो, धीरे धीरे करके इन चीजों को शुरू करो, एंड दैट्स हाउ यू कैन इंक्रीज योर मेमोरी पावर। आई होप नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो आई विल डू कपल ऑफ मेमोरी रिलेटेड एक्सरसाइज, बट द बेस्ट पार्ट इज दैट जो कल किए हो वो तुम्हें आज याद होना चाहिए। उसीलिए मैंने शुरुआत में ही पूछा कि कल क्या ब्रेकफास्ट किए थे, एक हफ्ता पहले क्या किए थे। नहीं नहीं भाई, भूलना नहीं है, पढ़ाई भूलते हो या गर्लफ्रेंड को भूलते हो? पढ़ाई भूलता है, नहीं तब तुम्हारा दिमाग सही है फिर, समझ रहे हो ना? जो आज कर रहे हो उसको रिवाइज करो, दैट्स द बेस्ट वे यू कैन इंक्रीज योर पार्ट, एंड बिट ऑफ फिटनेस इज रिक्वायर्ड फ्रेंड्स, एंड विदाउट दैट इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट। हेल्दी मतलब विशाल के तरह हेल्दी नहीं, हेल्दी एंड फिट। विशाल कल से दौड़ना है, फुटबॉल इज ऑल्सो वेरी गुड 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 गुड। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड आई फील कि सेशन अच्छा रहा, एंड मैं जब नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो फिर हम लोग आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम लोग कुछ मेमोरी रिलेटेड कुछ करें। देयर सो मेनी थिंग्स एक्चुअली व्हाट यू ऑल कैन डू। फोन नंबर्स को याद रखो, जरूरी नहीं, ये नहीं कि सिर्फ गर्लफ्रेंड का नंबर याद रखो, माता पिता का भी याद रखो, दोस्तों का भी याद रखो, नंबर याद रखो। ये एक्सरसाइज आज से शुरू कर दो। अगर घर पे कॉल कर रहे हो तो अपने माता पिता का नंबर याद रखो, उनका सेव मत करो, ऐसे ही जो है डायल करो। इट्स एक्सरसाइज, व्हाट इट, पहले इतना कर लो भाई, बेसिक से शुरू करो, एंड देन यू विल लैंड अप समवेयर। देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ऑफ कोर्स एक स्टैंडर्ड बना दिए हैं कि न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़िए, अब जो तुम्हारा इच्छा हो, यू कैन वॉच मूवीज, यू कैन वॉच BBC देख सकते हो, या फिर कोई ऐसे इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स देख सकते हो, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ खोल के इसे देख ही रहे हो, समझो, लिखो। एंड यस, ये मैगजीन जरूर पढ़ो, रीडर डाइजेस्ट, इट्स अमेजिंग। आई गॉट माई कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, हम भैया जिला स्कूल से पढ़े हैं और ठीक ठाक अंग्रेजी बोल लेते हैं, हो जाएगा, ठीक है। रीडर डाइजेस्ट पढ़ो, मैगजीन्स बहुत सारे हैं, बट ये डिपेंड करता है कि आप सबके माइंड कैपेसिटी पे भी। नॉवेल्स भी पढ़ सकते हो, बट अगेन वो माइंड कैपेसिटी वो तुम्हारे इंटरेस्ट पे है, वो हम नहीं कह सकते कि हाँ ये पढ़ो वो पढ़ो, जो तुम्हारी रुचि होगी वही ना पढ़ोगे। तो ये तो बढ़िया है ना भाई, तुम फास्ट बोल रहा है। कम्युनिकेशन कौन पढ़ाता है यहाँ पे? प्रिंसिपल सर पढ़ाते हैं। कम्युनिकेशन का ठीक है, फास्ट बोल रहे, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट ऑलवेज रिमेंबर टू बी अ गुड स्पीकर यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। यू नीड टू लिसन द वर्ड्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड। और धीरे बोलो भाई, धीरे बोलने में दिक्कत है, मोटर लगा हुआ है अंदर। जल्दी निकलता। रूममेट कौन है तुम्हारा? अच्छा, सब सिंगल सिंगल रहते हो, तो बैठते तो होगे ना भाई। गर्लफ्रेंड है तो फिर गर्लफ्रेंड के साथ धीरे धीरे बोलो। गर्लफ्रेंड नहीं बोलती है कि बड़ा जल्दी बोल रहे हो बे, धीरे धीरे बोलो। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग,
whether you speak in Hindi or whether you speak in English, हमने क्या कहा कि it's like ornament. ये ornament तो बनाना पड़ेगा. जल्दी बोल रहे हो, बहुत बढ़िया है. अब सामने वाला जल्दी समझेगा तब ना बोलोगे भाई. So कोशिश करो अपने रूममेट्स के साथ कोशिश करो, और सब लोग जिम्मेदारी लो कि अगर कोई कहीं पे कमजोर है, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल टीम, यू ऑल पीपल कैन क्रिएट वंडर्स. बहुत छोटा टीम है, और किसी का भी कहीं पे भी अगर कुछ गलती हो रहा है तो उसको सुधारने का कोशिश करो. यही ना टीम है थर्ड ईयर का, छोटा टीम है. यू ऑल शुड वर्क कलेक्टिवली. कलेक्टिवली अगर अभी काम नहीं कर पाए तो फिर होटल्स से आओगे, बोले बड़ा पॉलिटिक्स है भाई, ये है वो है. ऐसे नहीं. ये वही बोलता है जो हार जाता है, जो कलेक्टिवली नहीं सीखा है काम करना. जब तक कलेक्टिवली काम नहीं करोगे, यस टीम एफर्ट, दैट ये अलग एक शब्द ही है कलेक्टिव इंटेलिजेंस का. इट्स लाइक टीम एफर्ट, क्योंकि सबका अपना इंटेलिजेंट कैपेसिटी है. कोई फूड एंड बेवरेज में अच्छा है, कोई फ्रंट ऑफिस में अच्छा है. नहीं तो फिर क्या है, जीएम अकेले काम कर ले भाई पूरे होटल का. एचओडीज क्यों रखे, प्रिंसिपल सर अकेले चला ले पूरा होटल. रिकॉर्ड नहीं ना हो रहा है. प्रिंसिपल सर तब अकेले ही पूरा चला लें कॉलेज, फिर उनको क्या जरूरत है एचओडीज रखने का या एक्सपर्टी रखने का हर एक सब्जेक्ट का. सो इट्स लाइक टीम एफर्ट. नहीं सीखोगे, ज्वाइन करोगे, साल भर बाद यही कहोगे कि बहुत पॉलिटिक्स है, ये है वो है, बड़ा गंदा है, कैसे फंस गए. सो स्टार्ट टू वर्क कलेक्टिवली. प्ले फुटबॉल. दैट्स द बेस्ट गेम विच विल टीच यू हाउ टू वर्क एज अ टीम. क्लियर? एनीथिंग एल्स? और कोई क्वेश्चन किसी के मन में? क्लियर है? डन. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. एंड आज से स्टार्ट कर लो. एंड आई कैन सी इट्स अ वेरी स्मॉल टीम. यू नो, स्मॉल टीम का यही मजा है. अगर कोई रिक्रूट करने के लिए आएगा ना, हमारे बैच में 150-200 बच्चे थे एक बैच में. छोटा टीम है. यू ऑल कैन पुट इन योर बेस्ट एफर्ट्स, और ये ठान लो कि हमको भाई एमटी हर हालत में चाहिए. क्लियर है? तुमको कोई प्रॉब्लम है क्या? उसको बोल रहे थे, हमको भी बोलो. कौन? ज्यादा दूर नहीं भाग पाओगे टीम को छोड़ के, थक जाओगे. ठीक है, वर्क एज अ टीम. अब टीम मतलब ये नहीं कि नकल कर रहे हो परीक्षा में. ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. हाँ, कीप अप द एनर्जी, और अच्छे से तुम लोग फोकस्ड रहो, पढ़ाई करो. एंड आई फील यू ऑल कैन क्रिएट वंडर्स, राइट? डोंट हैव एनी डाउट्स कि बिल्कुल नहीं, एकदम बैंग ऑन. ठीक है, at least you'll have a graduate degree. Keep on preparing for something else if you feel. Put in your best efforts. Nobody can stop you. This is for sure. ठीक है, चलो, all the very best to all of you. Thank you.